if social media is something which is making you crazy, which you think, oh my god, I'm trying everything to get the result, but I feel I need some more time to get result, then I invite you to this amazing life, um, where, as the topic suggests, as a journey from 0 to 10k followers. Well, I don't prefer much of the follower thing, but since this is something which everyone can see and everyone can, पैरामीटर्स वो बना लेते हैं एक सक्सेस का, सो आई हैव नो प्रॉब्लम उसके बारे में बात करने में. लेकिन उसके पीछे जो मेहनत जाती है, आज उसके बारे में बात की जाएगी कि कैसे one of my student, her name is Kusum, and how did she made it, how did she achieve this with all her efforts, smart work, time management and whatnot. And today you're gonna witness, because I have like a lot of questions to ask from, because as a coach, everywhere you go to any coach, they'll teach you everything, they'll do handhold for you, but it's you who do it for the longest period of time, and that gives the result. Like consistency, everyone talks about it, and this is exactly the situation. Meanwhile, आप लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, do let me know where are you from. By the way, my name is Neha and I'm from Patna, and I'm a business coach to wellness coaches, and you can let me know where are you from. I would like to send hi to everyone and want to have a beautiful start to this life, because today you're going to witness the most beautiful journey of a wellness coach. Okay, you may go to a lot of events, extravaganza, you meet a lot of people there, but I am so happy that, and I'm so glad and feel so grateful that it happened because of social media. So yes, I'm very happy. So okay, Ramila says she's from Mumbai. Spina is from Kolkata. That is amazing. You people are coming all the way from everywhere, and I was super excited. So I have sent this live request to Kusum, and let's see when she's here. Meanwhile, आप और मैं तो हमेशा बात कर सकते हैं. Like मुझे तो वैसे ही बहाना चाहिए आपके साथ बात करने के लिए, है ना. और मैं चाहती हूँ, नीचे एक क्वेश्चन स्टिकर है, क्वेश्चन बना हुआ है, वहां पे अगर आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चंस पूछ लूंगी. एंड एनी क्वेश्चन दैट यू लाइक, मैम कैसे अचीव किया आपने, कैसे सब कुछ मैनेज किया, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू, apart from my questions, she will be answering your questions too. Yes, I am very excited for that. And okay, so many people are joining, you're showing your love. By the way, I just want to know exactly your profession. Like, are you a wellness coach, or if you are something else, do write in the comment section, because I would love to know who is okay. Amrit says hello Amrit. So are you all a wellness coach, या इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? Do let me know. I will say a hi to each one of you. देखो किसका फोन बजा वहाँ पे. Okay, Vivek says he is a wellness coach. That is awesome. Okay, baby step of consistency. I'm loving it. Okay, Prerna says she's an entrepreneur. Okay, that is great. Being an entrepreneur does take its own journey to achieve, and it does take time. Okay, and Spina says she's a wellness coach. By the way, meanwhile she is joining, I have a question to ask to each one of you, since we are only few days left to join to 2023, almost like 2.5 months. So what's your plan, what's your goal to achieve and enter in 2023? How do you see, like if you write a gratitude note, or if you make a list of to-do list or things to be achieved, उसमें से कोई एक ऐसा क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो, आपको लगता है यार इस साल तो मैं करके ही रहूंगी, वो क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. आई वुड बी मच हैप्पी टू नो each one of you. Meanwhile, I'll message Kusum to join, so that we can start this lovely life. But I will be more than happy to know your questions. Okay, great.
Okay, Prerna says she wants to have a proper weight gain. That is amazing, amazing. Okay, that's amazing. Okay, who's else? मतलब बाकियों का क्या goal है for 2023? You know, to end 2022 with this. मतलब ये इसके बाद तो करके ही जाना है. What is that one thing? तो प्रेरणा का weight gain है, और किसी का? Okay, people are joining and I'm so happy to see this. Great. Okay, I'm just connecting with Kusum. Let's see if she can join, and I'll be more than happy. Okay. Okay, so all you have mentioned that you people are entrepreneur, wellness coach, and you're doing this business. By the way, of course, one very important question: like, how long you've been into your business? I mean, this really connects me because either you are old into the business. Hello, the live has started. Okay, great. Some people are there in my contact list also, so I connect from there. Okay. Oh, Prerna says she's from 8 years and she also want to learn new skill and social media regarding. Oh, that's a really thing because let me just tell you, social media is the future. If you do not learn today, you have to learn आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, एंड तब तक आपके साथ जो लोग हैं वो कई और आगे पहुंच चुके होंगे. ओके, लाइक व्हेन आई जॉइन 3 years back, again it was huge competition in the market, but competition did not made me feel like I'm less or something, because I was very confident that I want to do something and I would learn those skills, upgrade myself, not just once but I keep upgrading myself, learning new skills, putting onto the shoes of my audience to understand what exactly they need. Okay, if you do that for the long period of time, you'll definitely see the results. Okay, so meanwhile only one people have replied like उनको 8 साल हुआ है. बाकी अपना बताना चाहेंगे उनको बिजनेस में कितने साल हो गए हैं. I would be very very happy to know. And you can tell me like it's Saturday, it's weekend, and you are here to learn what exactly it takes to go from 0 to 10K and get results, especially being consistent, because that's the question that I am getting in the question sticker कि ये कंसिस्टेंसी तो छोड़ो, ये बताओ बेबी स्टेप कैसे लेते कंसिस्टेंसी का. ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई बिलीव कंसिस्टेंसी, चाहे मेरा बिजनेस हो, आप मुझे कंसिस्टेंटली देखते हैं. अगर आप वेलनेस कोच हो तो आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट हो, लेकिन बिजनेस को शोकेस करना, बिजनेस को अपने तरफ लोगों को लेके आना, यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी, बिकॉज दैट्स वेयर पीपल सी एंड जज दैट ओके, she's very consistent, she's quite professional in her business, and I have to go to her, I have to connect with her. Okay, Anu says she is in the business in 1 year, from 1 year. That's amazing. Spina says she is from 4 years. That is also great. Okay, and you could also mention your goals, what exactly your goal is. जब हम गोल के बारे में बार बार बोलते हैं, this law of attraction rules है ना, यूनिवर्स में वो मैसेज जाता है गोल्स को जब बताते हैं, या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिलाते रहते हैं, ओ या दिस इज माय गोल, दैट्स माय गोल, या आई हैव टू अचीव दिस. तो पता है कभी कभी हमारे ना गोल्स एकदम नॉन अचीवेबल भी हो सकते हैं, हम वो कभी अचीव नहीं कर सकते. बट ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन ये बहुत चालाक है, ये पकड़ के ले लेता है आपके गोल को. ठीक है, और वो कैसे भी करके अचीव कराएगा. ठीक है, सो सम पीपल से मी आई डोंट लाइक कंटेंट क्रिएशन, आई डोंट लाइक रील मेकिंग, आई डोंट लाइक पोस्टिंग स्टोरी. But social media starts from there. It's like going out of comfort zone. It's like somebody wants to lose weight and they come to you saying, मुझसे न्यूट्रिशन नहीं लिया जाएगा, मुझसे वर्कआउट नहीं हुआ जाएगा, मुझसे मॉर्निंग सेशन नहीं अटेंड किया जाएगा. Now you tell me how I can bring results. Now you tell me how I can get that results. ठीक है, so as a coach, what will be your first word? It will be first, जो आप जिस माइंडसेट से हैं, आपको थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा to get the result. अगर वो अपने आप से हो जाता तो अब तक हो गया होता ना. Why it did not happen till now? Because the shift in mindset is very 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 important. और ये कब होगा? When you come under a coach, you get coached to shift your mindset. Number one, because you are ready to do the things that was making you uncomfortable. Okay, number one. And number two, you do it because you want to see the results. And number three, you do it consistently, right? So
ये कब होता है? इट ऑल स्टार्ट्स विद द ब्रेन, इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड सेट, है ना? तो अगर आगे जाके आपका क्लाइंट बोले ना मुझे ये नहीं करना, अब बताओ कैसे रिजल्ट आएगा, तो बोल देना पहले खुद से ट्राई कर लो, उससे नहीं होगा तब आना, ठीक है? Okay, so lovely people are joining, and I am so happy that you have the questions to ask. You feel so intrigued to learn about social media. Sometimes you feel, yeah, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, but definitely you're gonna see the result. Okay, so let's see if Kusum is here, and we can go live. And you people are free to ask any questions. And I am so happy that you can ask a question. You can actually see a person from your field, right? कि हम लोग हमेशा ये एक्सक्यूज देते हैं, यार टाइम नहीं है, यार समझ नहीं आता, यार कैसे होगा। अरे कैसे होने के लिए तो सामने वाला है ना आपको बताने के लिए, लेकिन उसको योर वर्क इज ओनली टू मेक गोल्स एंड बी रेडी, then that I will do whatever it takes. I will do. Okay, great. So let's see if Kusum is here, and okay. Okay. Meanwhile, if you have any questions, you can ask me. I mean, that's my favorite line. Anytime, I always tell my students also, my, everyone. Okay, people are welcoming Kusum, but I cannot see Kusum now. She says excited. Maybe Kusum, you can send me the request because I'm not able to send from here. Can you please do that for me? Can you please send me a request? I'll be more than happy to, invite, but I'm not able to send from here. If you can do it, or maybe you can rejoin if you're not able to send. Okay, can anybody help me to send her a request? Apart from I have shared the live to her, and I'm also going. Okay, let's search. Okay. I have invited her. Let's see if she gets the invite. And okay, Adi Wellness Coach. Hey, oh, hello. How are you? I'm awesome. Hi, Neha, and hi, everyone. We've been waiting for you. From 10 minutes, I called. I'm like, "Aaja, I mean, it's time to शुरुआत करने का हो गया है." Okay, thank you so much. So, how are you, Kusum? First of all, people have been sending love and messages in the comment section. Hello, Kusum ji, आ जाइए. और कुसुम जी पता नहीं कहाँ बिजी है. कहाँ है बिजी कुसुम जी? थोड़ा बिजी थी कहीं पर. थोड़ा something personal. Okay. Okay, great. So, welcome, Kusum. I invite you to this amazing live. As the topic says, journey from 0 to 10K. I have literally seen you. You were almost at 1,000 or something followers, and today it's 10K. However time it took, but you showed up, and that's what the major, win for us, for everyone, to see consistent. Okay, so Kusum, would you like to introduce, since everyone knows, but still a formal introduction is always welcome. Please go ahead. Yes, thank you so much. तो मैं कुसुम इंदौर से बात कर रही हूँ एंड जैसा कि आप सभी को पता है मैं हमेशा नॉर्मल हिंदी में ही बात करती हूँ. तो यस, इसी में चलेगा. और जैसा नेहा मैम ने बताया है पहले से, मैं भी वेलनेस कोच हूँ आपकी तरह. सो ट्राइंग माय बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. That is amazing. और जैसे कि आप बार बार हाथ उठा रहे हैं तो आपके हाथ में मेहंदी है. क्या वो आप दिखाना चाहते हैं सबको? यस. अरे क्या बात है. मतलब ये जो प्यार जो भी कल परसों इतना भर भर के सोशल मीडिया पे आ रहा था, आई फील लाइक शिट यार मैं क्या करूं. बट ओके, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग. I will enjoy watching everyone. Okay, that's amazing. So we'll do some Q&A, Kusum. And Okay. I'm sure आप बहुत लोग को आज मोटिवेट करने वाले हो. बहुत लोग आपको फिर बाद में परेशान करेंगे, तो मुझे मत बोलिएगा कि आपने मुझे लाइव में क्यों बुलाया. It's okay, Neha ma'am. But before starting the questionnaire, मुझे याद है जब मैंने पहली बार आपको लाइव बुलाया था, आपने मुझे एक चीज बोला था, मैम क्या पूछने वाले हो आप. और आज जब मैंने आपको लाइव में बुलाया, ओके लेट्स डू इट. ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन कैसे आया? पहली बार जब लाइव बुलाया था तो आई वॉज लाइक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लाइव आने का और बात करने का. अभी ऐसा है कि नेहा मैम जो भी पूछेंगी मतलब आई कैन आंसर दैट. आई विल ट्राई माई बेस्ट. और इतना डर नहीं है कैमरे के सामने का.
मतलब कैमरे के सामने आने से ऐसा नहीं है कि क्या होगा, कैसे मैं बात करूंगी। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू। मतलब आपने बोला दो चीज, एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया मतलब ड्यूरिंग द टाइम, और दूसरा आपको ट्रस्ट भी है कि सामने वाला जो है वो ऐसे सवाल पूछेगा जो मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। यस। राइट। ओके ओके ग्रेट। सो पीपल, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है आप प्लीज क्वेश्चन स्टिकर में डालें, क्योंकि चैट जो है ऊपर ऊपर चल जाता है। क्वेश्चन स्टिकर में आई कैन टेक द क्वेश्चन एंड okay, people are saying you're doing great job. Marketing Munda is saying, hey Munda, great, confidence shift, amazing, amazing. I mean, this is just the start, and I'm sure I'm gonna take a lot of your time because today you made me wait 10 minutes. Okay, so I hope you don't have any pre, thing beforehand. कुछ meeting ऐसा कुछ तो नहीं है ना? यस, है लेकिन अभी नहीं है, 7 बजे है। Oh, that means we have a lot of time. Okay, great, Kusum. So let's start with first question. The most important question which I hear from each and everyone is how do you manage time despite इतने सारे meetings की? Every wellness coach that I talk to is says morning meeting, afternoon meeting, evening meeting, night meeting, again 5 a.m. club. आप कैसे मैनेज करते हो? सोशल मीडिया पे इतने दिखते भी हो और मीटिंग भी अटेंड करते हो? लेट मी नो। बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। देखो कभी कभी क्या होता है, तो ट्रैक लाइक अभी अभी मैंने और अच्छे से सीखा है टाइम मैनेज करना। पहले भी थोड़ा सा जानती थी बट अभी और अच्छे से सीखा है, और स्टिल आई एम लर्निंग। मेरा भी टाइम किल होता है बट फिर भी मैं सीख रही हूँ। तो सबसे पहला टाइम मैनेज करने का मैं आपको टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको पोस्ट डालना है, शेड्यूल करना है, कुछ भी करना है, स्टोरी डालना है, मैं स्टोरी डालने की भी टू डू बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है और इंस्टाग्राम पे इंगेज करना है, ऐसा मेरा टू डू लिस्ट रहता है। एंड सेकंड थिंग आप कर सकते हैं टू डू लिस्ट के अलावा, अपने टाइम को ट्रैक कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, मैं भी खाना कुक करती हूँ घर पे, तो मेरा खाना कुक करने में कितना घंटा जाता है, लाइक 15 मिनट में कुक करती हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकती हैं। वेन यू नो कि आपको कोई काम करने में कितना टाइम लगता है, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और उसको कितनी देर में अगर लेट लग रहा है तो जान सकते हैं कहाँ किल हो रहा है। तो दैट इज 2 ways आई एम डूइंग करेंटली, नेहा मैम एंड एवरीवन। Wow. Okay. Akanksha Amor says, you are amazing. If she's telling about you, we don't get a chance to collaborate due to some reason, but I'm happy you're doing great. I don't know किसके साथ है, आपके साथ है मेरे साथ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे collaboration होते हैं। But the most important thing that you mentioned is tracking. ट्रैकिंग, प्लानिंग। आपने बोला मैं स्टोरी तक प्लान करती हूँ, जबकि स्टोरी इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग बाय पीपल। की छोड़ना यार, कुछ भी डाल देंगे, फ्रेश का फोटो डाल देंगे, शेक का डाल देंगे, सूप का डाल देंगे, नो इसके नो नो। अलावा कोई आइडिया ही नहीं आता है लोगों को। तो ये स्टोरी के आइडियाज आते कहाँ से आपके पास? जैसा कि यू गाइडेड मी ऑलरेडी, आई विल लाइक इन एवरी क्वेश्चन आई विल मेंशन इट। सो गाइस, ऐसा मत सोचना कि मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर। ओके, सो नेहा मैम जैसे गाइडेड मी कि जो आप करते हो वो दिखाओ सही से। तो आप क्या सिर्फ पूरे दिन आप पर ऐसे ही पीते हो, पूरे दिन फ्यूल ही लेते हो? नहीं ना, आप तो बहुत कुछ करते हो। यू गाइड पीपल, आप ग्रुप चेक करते हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कराते हो, आप नहीं कराते तो आपके कोच कराते हैं ना। तो अपनी लाइफस्टाइल शो करो, और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वही शो करो, क्योंकि वो भी लिमिटेड है, पूरा उससे नहीं होता। तो आप क्या वैल्यू लोगों को दे सकते हो वो भी आप दिखा सकते हो। तो वीडियो में आना भी जरूरी है, आप वीडियो बना सकते हो। और कुछ याद नहीं आ रहा तो रोज एक लिस्ट बना लो, फिटनेस टिप्स लोगों को दे सकते हो, पूरा 1 2 3 21 डेज तक कोई सीरीज चला दो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। करंटली मैं नेहा मैम को भी देखती हूँ, मैं सीरीज बहुत यूज कर रही हूँ। कभी वर्कआउट सीरीज, कभी वेट लॉस टिप सीरीज, कभी पीसीओडी रिवर्स सीरीज, ऐसा करके। तो ऐसे करके टिप्स आती हैं। और मैं नेहा मैंने बताया था बहुत कुछ, नेहा मैम बताती है, बट आइडिया अपने आप से ही आते हैं। और मैं नेहा मैम को देख के भी अभी भी बहुत सारी चीजें सीखती हूँ। वाह। और मैं आपकी स्टोरी में जब तक इंगेज नहीं करूँ ना, मुझे शांति नहीं मिलती है। चाहे एक लाइक मार दूंगी, कुछ तो लिखूंगी यार, कुछ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अरे ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हो आप, यू नो समथिंग लाइक दैट, में रिलेशन एक और बिल्ड होता है। तो स्टोरी का मतलब ही है एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, और आपने बहुत अच्छे से बताया। और मुझे और बहुत अच्छा लगता है, आप ट्रैवल करते हो, घूमने जाते हो, डिनर करने जाते हो, और जिम जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ, यू जस्ट पुट इन एवरी ब्यूटीफुल स्टाइल। दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो आप बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हो, एंड आई एम श्योर लोग भी धीरे धीरे सीखेंगे।
बहुत लोग आपकी स्टोरी को आज देखेंगे तो थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा आज उनको. ओके, ग्रेट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पीपल यू कैन आस्क. ओके, नंबर 2 क्वेश्चन इज टेल अबाउट योर स्टोरी बिफोर सोशल मीडिया. कैसे बिजनेस होता था आपका? ओके, सो सोशल मीडिया जब पेंडेमिक आया तभी मैंने स्टार्ट किया था. इससे पहले मैं फिजिकली काम कर रही थी, बट नेहा मैम से पहले मैं और स्ट्रगल कर रही थी. लाइक 3-4 महीने पहले से मैंने पोस्ट डालना स्टार्ट किया था नेहा मैम को ज्वाइन करने से पहले, और मुझे हेल्प चाहिए थी. और उससे पहले मैं नॉर्मली बाहर जाके इनविटेशन करना, जैसे हम सभी करते हैं, जनरली बात करना, लाइक फिजिकल टूल्स वी आर यूजिंग, 1-to-1 करना, लोगों से बात करना, और कैंप्स लगाना. मैंने आज तक कभी कैंप्स तो नहीं लगाए, बट मैंने देखा है, मैं इनविटेशंस करती थी. तो ऐसा था. और ठीक है, बिजनेस वो भी टूल्स काम करते थे, पर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग, लोग तो घर के सामने खड़े होने से भी डर जा रहे थे, तो हाँ, हम लोग यूज नहीं कर सकते. और फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सडन फिर हम क्या करेंगे. सो मैंने डिसाइड किया कि सोशल मीडिया सीखना है. हम्म. मतलब जब आप बोलते हो ना सोशल मीडिया सीखना है, तो बहुत लोग ना खुद से हाथ पैर मारते हैं, लाइक पूल में कूद के हाथ पैर मारना कि मैं खुद से स्विमिंग सीख जाऊंगा, और गोइंग टू अ कोच. व्हाट इज दैट डिफरेंस दैट यू फेल्ट? बिकॉज आपने भी ट्राई किया ही होगा कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे. यस यस, द ह्यूज डिफरेंस. मेरी आज की पोस्ट भी, रील भी यही थी वेट लॉस वालों के लिए, कि विदाउट कोच आप कैसे करोगे और कोच के साथ कैसे करोगे. तो नॉट ओनली सोशल मीडिया, हर जगह आपको पता है, अगर आपके बिना कोई वेट, एज हम सब कोच हैं, है ना, उम्मीद है कि सारे कोच हैं यहाँ पे. अगर कोच के बिना आज जब आप वेट लॉस ट्राई कर रहे थे, कम्युनिटी में नहीं आए थे, तो आपकी जर्नी कैसी थी, इमेजिन करो. आपको नहीं पता था, गूगल पे जाते थे, इंस्टाग्राम पे जाते थे, कोई कोई कुछ बोल देता था, फॉलो कर लेते थे, तो बहुत दिक्कतें होती थी. कभी कभी लगता था वेट स्टक हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत डिमोटिवेशन आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, फिर भी नहीं होता था. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस काम को करने में 10 साल लगेंगे, उसको 1 साल में क्यों ना किया जाए. सिंपल सा रीजन है ना. तो अगर आप कोच के बिना करोगे, तो वही चीज को सीखने में यू विल टेक 10 years, और कोच की एक बार हेल्प ले लोगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे खुद पे, तो यू विल टेक 1 year ओनली. और फिर उसको बस प्रैक्टिस, हाँ, फिर हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कोच एकदम बात ही करना बंद कर देते. यू कैन स्टे विद देम, और आप कनेक्ट कर सकते हो जिंदगी. अच्छा, हमने कब स्टार्ट किया था, फिर रिमेम्बर द मंथ और ईयर? यस, अक्टूबर 2020. और आज क्या है? अक्टूबर 2022. 22, यस, 2 साल are कंप्लीट हो. we are still in touch. We यस still talk like mentor mentee तो दूर, friends, right? यस चलो कुसुम, क्या हो रहा है, चलो बात करते हैं. It could be anything. We don't hesitate to talk क्योंकि ऐसा एक connection बन जाता है. Okay, we have a question from Tanya, Fit Mommy Tanya. What to हाँ. do in starting phase? How long does it take to generate audience? Yes, this is a very important question. ओके, लाइक स्टार्टिंग फेज में, जैसा कि आपने मुझे बताया था, कि लाइक द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो पोस्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी कोचिंग में पहला पॉइंट था टू बी नोन. पहले जाने जाओ, लाइक टू बी नोन, है ना. उसके बहुत सारे स्टेप्स है, वो मैं नहीं बताऊंगी, नेहा मैम ही बताएंगे ना. ऐसे में सोचो मैं पूरी ट्रेनिंग मैं ही दे दूं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता. कोचेज हियर, ओके. सो टू बी नोन, तो पहले कोई जाने तो सही कि हाँ, फिटनेस कोच कुसुम कोई तो है, कुछ कराती हैं, ठीक है. तो ऑडियंस जनरेट करने के लिए आपने मुझे एड्स के बारे में भी बताया था, न्यू ऑडियंस करेंटली जो है, तो बट आपने मुझे बहुत सारे ऑर्गेनिक ग्रोथ के टूल्स भी बताए थे. लाइक उसमें कंटेंट था, स्टोरीज थी, इंगेजिंग टूल्स थे, ये सारी चीजें थी. ओके, और क्या, हाउ डज इट टेक टू जनरेट ऑडियंस. यस, ऐसे ही, मतलब जनरली जो ऑडियंस है, आपने बताया था कि जितने फॉलोवर्स हैं उनकी टेक केयर करने के लिए कंटेंट डालो. टू प्लान अपना, आपने ऑडियंस पर्सोना करके एक पॉइंट बताया था, वो क्या होता है मैम बताएंगी, बट उसमें आपको अपने ऑडियंस फाइनलाइज करने होते हैं कि आप किन के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो वो आपसे रिलेट कर पाते हैं. सो दैट्स इट मैम. आई होप मैंने आंसर कर दिया है. नहीं किया है तो आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए और क्या बताना है. No, it is absolutely true. अगर आप ऑडियंस जनरेट करना सीखना चाहते हो, the best way is to keep doing the market research. Yes. मतलब आपके पास अगर जवाब आएगा कि हम इस ऑडियंस कैटेगरी में आते हैं या हमारा ये प्रॉब्लम है,
तो आपको एक आइडिया मिलते रहता है व्हाट एग्जैक्टली टू पुट ऑन सोशल मीडिया। जैसे आप यस कितने बार सवाल करते रहते हो स्टोरी पे, और फिर मैं देखती हूँ कई यस बार कंटेंट उसी से कनेक्टेड होता है, यस तो यस वहां हमें बहुत इंपॉर्टेंस फील होता है, right? And of हाँ course, it's a time-taking thing, but audience feel very, very connected. Great. यस Okay, we also have question from Ramila Patel. Baby step of consistency. ये कैसे क्या होता है वो baby steps? ओके बेबी स्टेप्स ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो पहले तो सिर्फ सोचना है और आपको दिमाग में रखना है कि हाँ मेरे को करना है, सॉरी है ना, हमको दिमाग में रखना है कि हाँ मेरे को ये करना है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्लान नहीं है तो दूसरे दिन ही आप ब्लैंक आउट हो जाओगे कि मुझे That's क्या करना है। अब आपके जैसे साथ यस तो अब एक चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। सपोज दैट आप लगातार 21 दिन तक कुछ काम करना चाहते हो, एंड करेंटली आई एम लाइक डूइंग मेनी 21 डेज चैलेंज, बिकॉज मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ उनमें। आई एम ऑल्सो लाइक बहुत सारे में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, जो हमारा काम है हम नहीं कर पाते। तो लाइक बुक रीडिंग अभी मैंने ट्राई किया, तो मैंने 21 दिन तक टाइम को कोई ऐसा लिख लिया पेपर पे सामने, एंड डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, और मैं रोज शाम को मार्कर से ऐसे आराम से ऐसे करती हूँ कि तो मेरे दिमाग में मैसेज आता है यू डिड इट। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए आप कर सकते हैं, बट आपको पता भी होना चाहिए आप क्या बना रहे हो। अगर आप रील में रहना चाहते हो तो आपने 5 वीडियो बनाई, और आपको लेकिन आपको ये नहीं पता आप कैसे बना रहे हो, आपने किसी कोच से कभी कोचिंग नहीं ली, नो आइडिया कि कैसे करना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे आप लिख लो, प्लान कर लो कि किस दिन क्या डालना है, तो आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। ओके, दैट मीन्स प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। कुसुम शुरू से प्लानिंग के बारे में बोल रही है। यस आपको अगर खुद से नहीं हो रहा तो खुद से हेल्प लो, खुद से भी हेल्प ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ओके यस ओके। Bijul Patel asks, what type of social media calendar we have to follow for regular post? Is there any regular calendar? नो मैं आई डोंट हैव एनी सोशल मीडिया कैलेंडर एक्चुअली, नो आई डोंट हैव। ओके, मतलब बेसिकली अगर आपको कुछ प्लान करना है तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस एंड नीश, राइट? ऐसा कोई सोशल मीडिया यस कैलेंडर गूगल बेस्ड फॉलो हाँ करना? यस ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है। आप खुद ही देखो कि आपकी एज और आपका जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से क्या क्या डालना है। हाँ आप बना सकते हो, खुद का कैलेंडर होता है सबका। लाइक करेंटली तो मैं नो कोई कैलेंडर भी यूज नहीं करती हूँ, मैं बस देखती हूँ कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या बना सकते हैं। और अभी तो मैं शेड्यूल भी नहीं करती हूँ कुछ भी ऐसा पहले से, बट हाँ हो जाता है ऐसा करके धीमे। अब क्या आदत में खून में आ गया है सोशल मीडिया करते करते, तो वो रोज हो जाता है, रोज हो जाता है। तो कैलेंडर तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी नेहा मैम ने मुझे बताया। हाँ, लेकिन यस ऐसे शुरू शुरू जब करते हैं ना तो हम लोग शेड्यूलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, नहीं क्योंकि बिल्कुल हैबिट मैम, नहीं होता है। बिल्कुल आपने मुझे बताया था और सिखाया भी था कि मंडे से लेकर ट्यूसडे तक क्या डालना है। हम्म। ओके तो दैट काइंड ऑफ कैलेंडर यू कैन हैव। नेहा मैम जो गाइड करती हैं 1-to-1 कोचिंग, आप जब उनसे ज्वाइन करोगे सी विल टेल यू। ओके ओके, ग्रेट। ओके, स्पिना मैम का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू बिल्ड ऑल योर बिजनेस यूजिंग ओनली सोशल मीडिया? नो 100% नहीं होता कोई भी चीज। हाँ 100% ओबिडियंट स्टूडेंट नहीं होते, 100% अच्छे बेटे नहीं होते, 100% ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है। लाइक 90% आई कैन से मेरे 90% 80-90% ऑडियंस सोशल जो मेरा बेस है, यूजर बेस है, वो सोशल मीडिया से। बाकी 20-10% इज फ्रॉम फिजिकल रेफरेंसेस, और ये सब सारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से है। ओके, तो एज कुसुम सेड, मेजॉरिटी जो आपकी वर्चुअल क्लब है वो सोशल मीडिया से है, यस बट फिर भी यू कैन स्टिल फोकस ऑन वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंस, यस फिजिकल। आप किसी से मिलते हो, जैसे आपने एक बताया था एक शॉपकीपर शायद आपके क्लाइंट है, यस राइट? बिकॉज आप वहां पे यस गए थे या बातचीत हुई। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई थिंक वो आपने फॉलो किया, एंड मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन जो पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तान्या का क्वेश्चन है, कोचिंग का फीस क्या है? उसके लिए आप प्लीज डीएम करें सो दैट आई कैन नो मच बेटर, देन हम लोग आगे जा सकते हैं। ओके ग्रेट, आई थिंक कुसुम बहुत मजा आ रहा है आपसे क्वेश्चन करके। ओके, आई वांट टू आस्क, बिकॉज द टॉपिक सेट 0 to 10K, so how would you define your 0 to 10K of journey, in ओके few words?
सो लाइक मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का आंसर देने के लिए मुझे थोड़ा सा 0 to बोले तो हाँ ठीक है। जब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया एट द टाइम 1800 कुछ फॉलोवर थे मेरे। एंड वो मैं जब लर्निंग फेज में थी तो कुछ कुछ कर रही थी, जो भी देखती थी तो उससे कुछ तो किया था। और उसके बाद फिर अभी जब आपके साथ स्टार्ट किया तो एक चीज मैं डिफाइन करूंगी कि कैसे 0 बोल लो, 2K से 10K या फिर 1K to 10K कुछ बोल लो। तो वो जर्नी जो है नेहा मैम, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब मैंने आप तो मुझे लगातार देख रही हैं जब से आपने मुझे गाइड करके लाइक छोड़ा है कि मैं हमेशा, मेरा पोस्ट रहता है। आपने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा होगा कि लगा 2 दिन तक भी मेरा पोस्ट नहीं आया, है ना। ऐसा कब क्यों तो है? पहला पॉइंट, यस मैम, पहला पॉइंट हम सब लिख सकते हैं या जान सकते हैं, कंसिस्टेंसी। एंड सेकंड, फेसबुक एड्स। मैंने लगभग बहुत सारा इन्वेस्ट किया है फेसबुक एड्स पे। कैन आई मेंशन द अमाउंट? यस यू कैन, आई मीन हाउ मच, कितने पीरियड में कितना इन्वेस्ट किया है, मे बी दे कैन गेट मोर आइडिया। यस यस, 2 साल में मैंने लगभग 80,000 रुपीज अभी तक मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत कम है वैसे तो बिजनेस के हिसाब से, बट इट्स एक्चुअली ठीक वेरी है। लेस। हाँ, वेरी लेस एक्चुअली, बट जनरली लोग ना नहीं करते, इतना भी डरते, 5,000 भी डालने से डरते हैं। तो हाँ। 80,000 लगभग मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ टिल नाउ, 2 साल में। तो ज्यादा नहीं है वैसे तो। हाँ। राइट। और इसके उसके जब मैं एडवर्टीजमेंट चलाती हूँ तो एक्चुअल ऑडियंस जनरेट होती है और वो मुझे फॉलो करते हैं। ओके। बट यस। ऑर्गेनिकली और एड्स को अगर कंपेयर करें तो व्हाट इज द थिंग और कंपैरिजन लाइक यू हैव फोकस और ऑब्जर्व्ड? मतलब कि एड से ज्यादा फॉलोवर्स आए या ऑर्गेनिक, ऐसा पूछ नॉट रहे ओनली हैं? फॉलोअर्स, एक होता है ना कि देखो एड इज मेंट ओनली टू अट्रैक्ट पीपल, यस पर मेजर काम तो ऑर्गेनिक ही हो रहा है। यस। बट ये बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते, दे फील पैसा लगा दिया एड में, वहीं से क्लोजिंग भी आ जाए। तो इस नहीं। मिथ को आप कैसे तोड़ना चाहते हैं? यस, थैंक यू सो मच फॉर लाइक एक्सप्लेन करने के लिए। ये दो देखो, ऐसा लगता है हमको कि हम पैसे डाल देंगे, बहुत सारे लीडर्स हों, अपन कोई भी किसी के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। अगर आपने डाल दिया, मतलब मेरे भी कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हाँ। लेकिन उनको लोग पैसा डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, नहीं आएगा। कितने लोगों का मैसेज आता है मैम, एड्स पे यस। 7-8 लाख खर्चा कर दिया, आज भी एक डीएम मेरे पास आया हुआ है, पर हमें ओ रिजल्ट माय गॉड, ओ माय गॉड। आपका तो सिर्फ 80,000 हाँ, बोल रहे हैं। अब ये इसका आंसर यही है मैम कि लोग आपको तभी फॉलो करेंगे। मेरा जो लोग 10K फॉलोवर्स हुए हैं और मेरा एड भी बहुत सस्ता चला, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा, जब लोग मेरे पेज पे आए तो उनने वो वैल्यू देखी, हम्म। पेज पे वैल्यू थी, उनको लगा कि इसको फॉलो करना वर्थ है, कुसुम को फॉलो करना वर्थ है, एक फॉलोवर बढ़ाना, एक फॉलोइंग बढ़ाना वर्थ है, ऐसा करके। तो आपका पेज इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, इस तरीके से रेडी होना चाहिए, जब आप एडवर्टीजमेंट चलाएं तो लोग आपके पेज पे आए तो आपको फॉलो का बटन दबा दें, उनको इस चीज के लिए वो मोटिवेट करें। तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड कोचिंग। सो आप जरूर से नेहा मैम को कॉन्टेक्ट करें और इसकी प्लानिंग करें, मैं तो सजेस्ट करूंगी स्ट्रांगली। एंड एक और बात आपको बता दूं, नेहा मैम ने जो बिल्कुल नहीं बोला है कि तुम ऐसा, मतलब ऐसा कुछ बताना, बट मेरे दिल से आ रहा है, बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। 2-3 years आप टाइम वेस्ट करेंगे फिर भी सीखना है सोशल मीडिया। तो बिल्कुल। that's it. मुझे ना कुसुम याद है जब आप मुझे पहली बार आए थे कि आपको कुछ सीखना है सोशल मीडिया, और तब आपने स्टूडेंट नहीं बने थे, आपने मुझे एक बात बोली थी, मेरे को ऐसा सिखा दो कि मेरे प्रोफाइल को देख के लोग बस डिसाइड कर ले कि कुसुम के पास जाते हैं। यस, और ऐसा हो भी रहा है। लाइक आज ही मैं एक लेडी से बात कर रही थी, सोशल मीडिया से मेरे पास आए थे। एंड वो बोल रहे थे, मैं आपकी रात में 9 बजे वीडियो देख रही थी और मैंने तभी सोचा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा अच्छा। एंड जब भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो ये मेरे बिना पूछे मेंशन करते हैं कि आपकी प्रोफाइल देख के हमने आपको देखा, आपकी वीडियो देखा या आपकी पोस्ट देखा, आपको देखा, आपको 3 दिन फॉलो करते हो गए, मैंने सोचा कि आपसे बात करनी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या। तो लाइक आई फील वेरी गुड एंड आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर यू के बिकॉज ऑफ यू मैंने प्रोफाइल ऐसा डेवलप किया और आज लोग ऐसा बोलते मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि लोग अपने मन में ही डिसाइड कर लेते हैं प्रोफाइल देख के कि मुझे इसके पास जाना है, हैं। राइट? यस, इनसे ओके। बात करनी है। ओके। और मुझे आपसे एक चीज और पूछना था, जैसे अभी 10K फॉलोअर्स हो गया, बट 10K पहले तो नहीं था ना, पहले 2K था, 3K था, 4K था, नहीं। 5K था। तो क्या लोग नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख के जज करते हैं? कभी किसी ने बोला आपको?
लोग तो नहीं जज करते, क्योंकि मेरे पहले भी जब मैं काम कर रही थी पहले मेंबर बनते थे, अभी भी वही रेशियो है। ऐसा नहीं कि फॉलोवर्स बढ़ गए तो अचानक से सारे लोग आ जाए, अरे 10K है इनसे ज्वाइन करो। लोगों को नहीं, हाँ फॉलोवर्स होना अच्छी बात है। अगर आप किसी ऑफलाइन किसी से बात कर रहे हैं और आप उनको अपनी इंस्टाग्राम पे वो दिखाओ प्रोफाइल, तो दे आर लाइक वो आपके इतने फॉलोवर हैं, लाइक सीरियसली ऐसा रिएक्शन आता है। तो ऑब्वियसली आपकी छाप तो बनती है। ये सेम वैसा ही है कि आप बाहर गए, आप कैसे कपड़े पहने हैं तो लोग आपको कैसे जज करते हैं। तो उतना ही फॉलोवर्स का मुझे इंपॉर्टेंस लगता है कि अगर प्रोफाइल दिखा तो लोग आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल से जज करते हैं। तो फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि आपके फॉलोवर्स नहीं है अचानक से तो आप अभी से डिमोटिवेट होने लग जाओ, नया मैम को बोलने लग जाओ कि नहीं मेरा नहीं हो सकता, मेरे 10K नहीं है। ऐसा नहीं है। जब 3K थे, 4K थे, वहीं से लोग ना वीडियो देख के आपका आपकी बातें सुन के आप पे विश्वास करते हैं, अच्छा ये ऐसा बोल रही हैं। इसका एग्जांपल नेहा मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि नेहा मैम जब मैंने नेहा मैम को कांटेक्ट किया था तब नेहा मैम के 2K अराउंड फॉलोअर्स थे एंड मेरे 1800 के थे। तो अब हम और नेहा मैम लगभग सेम लेवल पे थे, बट मैं नेहा मैम को इतना बड़ा लाइक ह्यूज रेस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट की थी, बिकॉज ऑफ आपको कंटेंट आपने जो लिखा था ना वो मेरे दिल तक जा रहा था। और मैं सोच रही थी कि इनसे बस मुझे इनके जैसा प्रोफाइल बन जाए तो काम बन जाएगा ऐसा करके। तो फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते बिना फॉलोवर के। ओके, दैट्स अमेजिंग। आज पता नहीं क्यों मुझे मीठा खाने का बहुत मन करेगा, इतनी तारीफ एक साथ बहुत सारा सुन लिया आज। थैंक यू सो मच। बट ये आपकी कंपनी का जो प्रोटीन बाइट बंद हो गया है ना, वो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। हो सके तो हर्बल लगता है कि मैसेज पहुंचा दीजिएगा। Okay, great. Okay, we have a question from Tanya. Is how to make the profile attractive? क्योंकि इतनी तारीफ आपने कर दी खुद की प्रोफाइल की मेरी, तो ये क्यूरियस है जानने के लिए कैसे करते हैं। कुसुम जी बताइए। प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। नेहा मैम ने तो मुझे ये भी बताया था कि नेहा मैम ने तो मुझे ये तक बताया था कि तुमको हेयर स्टाइल कैसे करना है। मीन्स मुझे बहुत मजा आया था सुन के। तो उनने बताया था कि तुम ऐसे प्रोफाइल करती हो लोगों को, तुम्हारी इमेज ऐसी बनती है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर लोग जानते हैं, अगर कोई लड़की को 5 किलो तो फर्स्ट एज अ वेलनेस कोच मैं बताऊंगी, क्योंकि सारे वेलनेस कोच थे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, आप क्या गाइड करते हैं, कैसा दिखाते हैं लोगों को, कैसे आप हैं। ओरिजिनल होना भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी चीजों में ओरिजिनल रहती हूँ। मैं अपना घर का कोना दिखाने से डरती नहीं हूँ। मेरे घर में कुछ नहीं पड़ा है, मैं दिखा देती हूँ, देखो ऐसा है, फोटो खींच के। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि ये कितनी रियल है, क्योंकि आजकल रियलिटी बहुत कम हो गई है। लोग कहीं का फोटो खींच के कहीं भी डालते हैं, तो ऐसा होता है। और आप उनके मन की बात करते हैं तो भी आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होती है। बिकॉज आई रिमेम्बर जब आपने बोला ना कि मेरे ड्रेस को भी लेके, मतलब मैंने बोला था आपको, यू लाइक तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं चेंज नहीं होना चाहती। एक होता है ना मन में तुरंत चेंज वाली भावना नहीं आती है, बट व्हेन यू रियलाइज, या मे बी आपने और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा अपनी इंडस्ट्री में, या लिटरली दिस रियली मैटर्स अ लॉट। एंड टुडे व्हेन आई सी योर प्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोफाइल पिक्चर looks ravishing. Okay, if I can just show you right now, आपका प्रोफाइल मेरे सामने खुला हुआ है, okay, and the professionalism it looks, and let me tell you, उन्होंने किसी सोशल मीडिया को हायर नहीं किया है, she does it by herself. Okay, बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये तो हम खुद से नहीं कर पाएंगे। I'm just scrolling for the people, you know, Kusum, if you allow. I mean, पता नहीं मैं आपके बिना सोचे कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है when I just scroll to your profile. It feels like this is so real. Okay, and मैंने आपका एक प्रोफाइल रखा था कि इंस्पिरेशन आता रहेगा आपकी बात करने का, और भी पॉइंटर्स आएंगे आपकी प्रोफाइल को देख के। So thank you so much. I mean, you have grown to a limit where you also feel, you're proud of yourself. Okay, great. Next question is, how important it is to get support from your sponsor in this journey? वेरी मच लाइक ये सेम वैसा ही है जैसे कि अगर आप अपनी मर्जी के लड़के से शादी करना चाहती हैं और आपके पेरेंट का सपोर्ट नहीं है तो आपकी नहीं होगी। आप ये सेम वैसा ही है। क्योंकि इन हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हमारे स्पॉन्सर का रोल सेम पेरेंट्स जैसा होता है। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उनको मनाइए, कुछ भी कीजिए। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ।
ओके। लाइक हमेशा माँ बाप नहीं मान जाते, लाइक मेरे तो दोनों केस में ही ऐसा है, तो मैं तो दोनों केस में आई है प्रूफ। तो लाइक मैंने जब अपने कोचेस को बताया था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, दे वर नॉट दैट मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। बोले अच्छा ऐसा कुछ है क्या, बट एक उनका अच्छा नेचर है कि वो हमें कभी वे नहीं बोलते कि क्या करना है, वो लगता है कि नया यूथ है, वी आर ओल्ड, नई नई चीजें हैं, करने दो। तो उनने कहा ठीक है कर लो देख लो, बट ये भी करना। मैंने कहा ओके। तो दोनों फिर जब मैं कर रही तो दे आर वेरी इंस्पायर्ड, और फिर मैंने भी उनको हेल्प किया बहुत सारी चीजों में, अभी भी मैं करती हूँ। एंड पूरी हमारी टीम को भी मैं हेल्प करती हूँ, तो अच्छा है मैम। वही है कि सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे पेरेंट का होता है कोई कोर्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, घर से निकलना अलाउड ही नहीं करेंगे, और वापस घर पे जाओगे तो ताने सुनने पड़ेंगे, है ना, ऐसा होता है ना मैम, यू कैन अंडरस्टैंड की। यस, तो सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मैंने भी एक चीज नोटिस किया, जो पिछले 3 साल में जो वेलनेस कोच बने हैं और जो उसके पहले के हैं, वो बिल्कुल भी इस जर्नी के साथ तुरंत कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एवरी वन इज ऑनलाइन राइट नाउ, है ना। तो उनके सीनियर्स बोलते हैं क्या ऑनलाइन में टाइम वेस्ट कर रही है, तेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, या तेरे को वेलनेस कोच बनना है, या प्रेसिडेंट बनना है। बट आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने तो वो सब लेवल अचीव कर लिया ना ऑफलाइन के ये थ्रू। एक चीज थी जो मैं एक दिन एक बुक पढ़ रही थी, इट वाज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक थी मैम, तो पॉइंट मुझे याद आया है, तो मैं बता देती हूँ कि जो आपके हो सकता है कई सारी बातें सही हों और आपके स्पॉन्सर उस पर एग्री ना करें। द रीजन, क्योंकि उन्होंने वो 10 years पहले थे उस चीज में, अभी जमाना बदल गया है, और अभी जमाना जितना लाइक ह्यूमन की लाइफ जितनी पिछले समय में 10 साल में बदलती थी, अब वो 1 साल में बदल रही है। इतना फास्ट ये ग्रो हो रहा है, टेक्नोलॉजी, रोबोट्स एंड एवरीथिंग। एंड एक मूवी भी करंटली मैं देख रही थी, मैं बहुत मूवी देखती हूँ, तो उसमें दिखाया गया था आगे चल के क्या हो जाएगा। लाइक ऐसे मैं बैठी हूँ टेबल पे और सामने आके एडवर्टीजमेंट चल रहा है, मेरे चारों तरफ 3D इमेज घूम रहे हैं, यस ये बिस्किट खाइए ऐसा। तो उस समय हम बाहर नहीं जा रहे होंगे, या बाहर भी जा रहे होंगे तो बहुत कम ह्यूमन इंटरेक्शन होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी, थोड़ा दूर का सोचें, बड़ी बुक्स पढ़ें, तो वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। अगर आप सोचें तो, मैं तो सोचती हूँ, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया सीख के मैंने दुनिया का सेकंड सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, एज नेहा मैम लोग मैं परिमल सर से शादी करना। अरे क्या बात है, देखा, हमारी ये वेलनेस कोच सिर्फ मेहनत ही नहीं, प्यार और रोमांस भी भरा हुआ है इनके अंदर। आप यस प्रोफाइल पे भी ऑलवेज। स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारा प्यार भी आपको दिखेगा। आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल कनेक्ट मोर, यू नो। ये यस। नॉर्मल भी है, ये दिन भर वेट लॉस नहीं करती है। नहीं नहीं, मैं नहीं करती हूँ वेट लॉस इतना। Okay, okay. People are saying some comments like Kusum ma'am, you are an inspiration. That is for sure, you are an inspiration. और आपके लिए क्वेश्चन है बिजल पटेल से। कुसुम जी, आप फ्लायर खुद बनाते हो? यस। खुद खुद, यस, बाई इन हाथों से। तो मेहंदी कब लगाते हैं फिर आप? ये दूसरे से लगवा ली, जो काम तुम दूसरों से सर्व करवा सकते हो खुद मत करो। Very good, time saving hack. Okay, we also have Tanu here, who is also one of my students. और कुसुम के भी काफी क्लोज है वो, so she's saying hello super girls, both of you looking awesome, thank you so हाय much. तन्वी। We have invited Kusum ma'am to inspire others कि मत घबराइए, ये आपको आगे लेके जाने वाला है सोशल मीडिया। Okay, great. So I have another question for you, is some tips on managing family and business together. People ओके, really get suffered because of this. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसकी तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, बिकॉज मेरी टीम में बहुत सारी बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं और उनका यही सवाल रहता है। तो सोशल मीडिया और या फिर मतलब ऐसा लगता है नहीं, पोस्ट भी डालना है, पूरे दिन आप ऐसे हो जाते हो एकदम थोड़ा ई वाली फीलिंग आती है, कैसे छोटे करूं। बच्चे हो तो फिर और कैसे मैनेज करें? हाँ सॉरी। छोटे बच्चे भी अगर हो तो और भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ हो जाती है, इवन मैं तो ये भी बोलती हूँ मेरी जो एक मेंबर है उनको, कि बच्चा किसी को देके वॉशरूम के बहाने जाइए, अंदर जाके पोस्ट बना लीजिए। ये होता है मोटिवेशन। बस बच्चा को तुम अगर देखो, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ दीजिए, बट कभी कभी ऐसा होता है आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, पूरे दिन आप ही को लेके बैठना जरूरी नहीं है।
लोग, लेकिन घर वाले लोग सपोर्ट नहीं करते। देखो कितनी सारी प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, आपने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया, मतलब जनरली ऐसा होता है ना, ये क्यों करना है, घर में रहो। कौन आजकल फीमेल्स को सपोर्ट करता है? नहीं करता। और वो सपोर्ट नहीं, ऊपर से सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया, ऊपर से सुबह का क्लब व्लब पता नहीं क्या क्या रहता है, तो आपको टाइम चुराना पड़ता है। लाइक टाइम चोरी करने को मैं बोलती हूँ, दूसरों से टाइम चुराओ, उनको भी थोड़ा सा। कभी कभी लोग कुछ नहीं करते, टीवी देखते रहते हैं, बट आप बच्चे को नहीं लेंगे, ऐसा होता है। लाइक बहुत सारे केसेस में होता है, ऐसा लोग करते हैं, उनको लगता है इन्हीं को रखना चाहिए, तो आपको समझना, लाइक वो करना है। और जो हमारा सवाल था उस पे आ जाते हैं कि टिप्स टू मैनेज टाइम एंड फैमिली। तो वही, यस, एंड बिजनेस। तो सबसे पहले तो आपके 2-3 टाइमिंग तो फिक्स होती है पहले से, कि आपका क्लब कब होना है या आपका जो भी बिजनेस कॉल्स हैं कब होने। अब बात आती है नए लोगों से बात करना, सोशल मीडिया पोस्ट डालना, स्टोरी डालना। तो स्टार्टिंग में आपको इसीलिए ऐसा लगता है कि मैनेज नहीं होता, क्योंकि आपने कभी उसे किया नहीं लगातार कुछ समय तक। लेकिन स्टार्टिंग में होगा, आप जब लिस्ट बनाने बैठेंगे, मुझे क्या क्या करना है, स्टोरी डालना है, पोस्ट डालना है, और अगले दिन के लिए पोस्ट बनाना है या शेड्यूल करना है, कुछ भी तो होगा ना, ऐसा रेडी करना है या फोटो क्लिक करना है आपकी खुद की, ऐसा होगा। तो आप टू डू लिस्ट बना के कीजिए। हो सकता है आपने 10 लिस्ट बनाई है, आप 3 काम ही कर पाओ, 3 ही कर पाओ। लेकिन जब दूसरे दिन हो सकता है आप 4 भी कर लो, क्योंकि आपको पता है आपने 3 कैसे किए थे। तो प्रैक्टिस से आपको मैनेजमेंट अच्छा आ जाता है। तो पहला तो मैं बताऊंगी फैमिली और मैनेज करने के लिए, कि जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो कोई टिप नहीं है, टाइम चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमेशा रोते रहते हैं। इवन मेरी टीम में अनामिका मैम है, यू नो नेहा मैम, और उनकी वो अभी, और है ना जिनको अभी बेबी हुआ था। अनामिका फिटनेस अभी और करेंटली एक अनामिका, और है, एक और है। एक और है गायत्री मैम। हाँ, गायत्री में। गायत्री, यस। तो उनके साथ यही चैलेंज आता है, उनके बच्चे को कोई नहीं देखता, हाँ। एंड प्रॉब्लम रहती है। तो मॉर्निंग कॉल पे भी वो बेबी को लेकर ही रहती हैं, ऐसा रहता है, और बाकी भी ऐसी रहती है। तो मैं उनको यही टिप देती हूँ कि जब भी बच्चा सो जाए तो अपना ये वाला काम कर लो। तो वाह। जितने भी लोगों के बच्चे हैं, क्योंकि बाकी काम तो, खाना तो बच्चे को गोदी में टांग के भी बन सकता है ना, लाइक। और आस पड़ोस वाली आंटियों से बात तो बच्चे को गोदी में लेके भी हो सकती है। मतलब जो अदर काम है वो हो सकते हैं, बट जब आप पोस्ट बना रहे तो आपको ध्यान देना पड़ता है, ये थोड़ा वैसा काम है। तो तो बच्चा सो जाए, हाँ, और जनरली सबके बच्चे सोते ही हैं दिन में। तो सिर्फ बच्चों के बारे में बात नहीं करते हैं, और भी तरह के लोग हैं। तो आप टू डू लिस्ट बनाइए। हाँ, सिर्फ और भी टू डू लिस्ट बनाइए, और फैमिली का टाइम फिक्स कर दीजिए। जैसे आप को कोई भी कभी भी कॉल नहीं करे। जैसे आपके हस्बैंड शाम को 8 बजे आते हैं, मेरे पास एक है जिनके हस्बैंड जॉब से आते हैं, और जब उनने ज्वाइन किया तो बोलते तुम पूरे दिन फोन लेके ही बैठी रहती हो, मेरे को पर्सनल टाइम नहीं देती हो। तो उनकी बात सही है, वो अपना काम करके आ गए, तुमने क्यों नहीं अपना काम खत्म किया? ज्यादा करोगे तो, हाँ, लाइक, टाइम करो, ज्यादा मत करो। हाँ, तो आपको करना चाहिए, आपको उनका टाइम नहीं किल करना चाहिए। पर्सनल टाइम किल करोगे तो लाइफ, लाइक रोमांस नहीं बचेगा, फैमिली टाइम नहीं बचेगा, रात में 12 बजे आप पोस्ट बनाते बैठोगे तो नहीं बचेगा। तो वैसा है, तो आप अपना प्लान करके पहले खत्म कर लीजिए काम। और जनरली क्या होता है मैम, मैंने देखा है लोगों का ज्यादातर टाइम दूसरों की लाइफ देखने में जाता है, ज्यादातर टाइम। हाँ, इसमें इसमें हाँ, तो आप वो अगर स्टॉप कर देंगे ना, आप वो देखो, कभी भी देखो, आप फोन लेके बैठो, अचानक से सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा मैं किल कर रहा हूँ सच में। रियल काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, स्टोरी डालने में मुश्किल से 30 मिनट में आप 4-5 स्टोरी डाल सकते हो। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा टाइम को लेके। और पहले फैमिली टाइम को भी प्लान करना पड़ेगा कि 8 बजे के बाद में कोई पोस्ट नहीं डालूंगी या नहीं कुछ करूंगी, या 9 बजे के बाद में कोई फोन में ऐसा काम नहीं करूंगी, किसी का कॉल रिसीव नहीं करूंगी, अगर आ भी रहा है तो बोलो कल बात करते हैं। तो ऐसा, तो आप जैसे 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप नए कॉल कर सकते हो। और तो ऐसे करके आपको टाइम सेगमेंट बना लेने हैं अपने, मतलब खाना बना, अपने लिए सेट करना पड़ेगा। जैसे यस, मुझे कुछ होता है रात के 9 बजे कॉल करूं, मैंने कहा नहीं, 12 से 7 नहीं, के बीच, उसके न पहले कुछ न बाद कुछ, क्योंकि मेरा खुद का फैमिली भी है। यस। जैसे मेरा टाइम अगर मैं बताऊं तो मेरा सुबह जो भी है 11 बजे मेरा वर्कआउट खुद का पर्सनल वर्कआउट का टाइम रहता है। उसके बाद फिर मैं पोस्ट सोशल मीडिया जो करना है वो करती हूँ, फिर मैं खाना मैनेज करती हूँ सारा, अपना अपने हस्बैंड का सारा। उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ फोन लेके, और 3 बजे तक मैं फोन में जो मुझे करना है, जो भी मेरे क्लाइंट के मैसेज सब कुछ चेक करती हूँ। तो फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत सोने, मेरे को सोने का भी टाइम मिल जाता है वाह, दिन में, बट मैं ये सोती तो नहीं हूँ मैं। और
ये तो जेम हो गया। मतलब आप बोल रहे हो पोस्ट तक बनाने का, आपको सोने का भी टाइम मिल रहा है, बताओ। हाँ, वो मैनेज करना आ गया ना मैम, इसीलिए तो आपको जब आ जाएगा ना तो, और अभी भी परफेक्टली नहीं आया है, हाँ परफेक्टली आ जाएगा तो मैं थोड़ा और अच्छे लेवल पे चले जाऊंगी, हाँ। क्योंकि जो जितने अच्छे पे टाइम मैनेज कर सकता है उतना अच्छा लेवल अचीव कर सकता है, क्योंकि टाइम ही मनी है, ये समझना जरूरी है। दैट यस, इज तो आप, यस, तो एब्सोल्युटली। फैमिली का अलग टाइम रखोगे जब, और काम का अलग रखोगे, मिसमैच नहीं करोगे तो आपके आसानी होगी, और फिर ज्यादा टाइम किल नहीं होगा। गलती क्या करते हैं, फैमिली टाइम पे काम कर रहे होते हैं, काम टाइम पे फैमिली लेके बैठे होते हैं, तो थोड़ा वैसा हो जाता है मिसमैच। Okay, यस। great. I think the greatest learning from here is to manage your time. और क्योंकि आपने टाइम का बात किया है, सो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, ये टाइम को लेके नहीं है, बट इट्स समथिंग एल्स, इज दैट इज फियर ऑफ कैमरा। हम ऑफलाइन तो लोगों से बहुत इजीली बात कर लेते हैं, ये कैमरे में बात नहीं होता, हमसे वीडियो नहीं बनता, ये ट्रेंडिंग वो चीजें फॉलो नहीं की जाती, इस पे क्या बोलना चाहते हो आप? हाउ टू ओवर। जैसे क्योंकि मैं भी कभी भी कैमरा और फोन फ्रेंडली नहीं थी, ये अभी आपसे मिलने के बाद ही मैंने वीडियो शूट करना, पहले भी मैंने करी थी, लेकिन देखो एक चीज होता है कि स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होके सोचना कि मैं कैसे तैरूंगी, मैं कैसे पानी में पैर डालूंगी, कैसे ऐसे हाथ मारूंगी कि ऐसे मारूंगी, ऐसे सोचना या मारूंगा, है ना। एक होता है कूद जाना बाद में वहां जाके जैसे मारोगे वैसे ही मरने वाले हैं पैर, बिल्कुल। आपको आधे आगे वाले हाथ लेंगे नहीं लेंगे, वैसे ही होने वाला है। और अकेले नहीं कूदने का, कोच के साथ कूदने का, इससे जब आप जा रहे हो अंदर तो वो आपको सेव कर ले। तो सेम विद सोशल मीडिया, आप दूर से पहले से ही अपने दिमाग में थॉट्स क्रिएट करते रहोगे कि कैसे होगा। मैंने भी किए थे बहुत टाइम तक कि कैसे कर पाऊंगी, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे चांस मिला, मुझे नेहा मैम मिले, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, उनको भी पता है, मैं 72 आवर्स के अंदर मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल तो बिल्कुल, यू डिडंट टेक हाँ, मच टाइम। यस, तो वो फियर भगाने के लिए कोई होना चाहिए जिससे आप अपने दुखड़े रो सको कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लाइक यू कैन टेल देम, आप उन लोगों को बता रहे हो जो आपसे भी ज्यादा डरते हैं कैमरे से, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो वही है कि डर तो हर चीज से होता है, तैरना सीखना है या आपको कैमरा का फियर है, लेकिन आपको स्टेप्स लेने होंगे विद द गाइडेंस, तो आपका फियर हट जाएगा। और अगर आप अपने बारे में कैसा इमेज बनाते हैं, अगर आपको सच में लगता है कि आप अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनो, चांस है। अगर आपको लगता है मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आता तो सीखो, आपको लगता है मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो अच्छी करो, आपको लगता है कि मैं, अब देखो रंग का तो कुछ नहीं हो सकता, मैं भी काले हूँ आप भी काले हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिल्टर लगा लो, भाई डरने से कुछ नहीं होता। सिंपल सा है, वीडियो बनानी ही है, अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे सीखना ही, अब अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरा कि मेरे को नहीं करना, ये है, बहाने हैं, तो फिर बहाना साइटिस का इलाज नहीं हो सकता जल्दी से। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर चला जाएगा, आपको बस जंप करना ही होगा। जंप करना है। That's it. Wow, that is so amazing. And before moving ahead, can we like invite your husband on the live if he's here? अगर वो स्क्रीन पे आना चाहे, because this नहीं, अभी 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 वो यहाँ पे नहीं है अच्छा नहीं है। Okay, हाँ, because he was being a supporting system to you, right? कई लोग यस। बोलते हैं कि यार सब कुछ अकेले कर रहे हैं, कहीं होता है तो जिनके अगर फैमिली में अगर सपोर्टिंग वाले हैं, तो एज अ बिजनेस ओनर या एज अ वेलनेस कोच, हाउ एम्पावर्ड यू फील? लाइक देखो, सबसे पहला तो ये है कि जैसे जब से मैंने सोशल मीडिया सीखा है, मैं सबसे ज्यादा एम्पावर तभी से फील करती हूँ। इससे पहले मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे, एक्चुअली हम दोनों का ही बिजनेस है, तो लाइक एज अ फीमेल मैं आपको दिल की बात शेयर कर रही हूँ, एंड उनको तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, अपने हस्बैंड को तो मुझे ऐसा लगता था वैसा लगता था, इज ऑलवेज लाइक आई नो आई नो। लाइक वो जब जॉब करते थे और मैंने जॉब छोड़ के फाइनल किया था कि मुझे फुल टाइम बिजनेस करना है, तो उस वक्त ऐसा हो गया था, मुझे लगता था कि मैं उन पे बोझ हूँ, मेरा खर्चा भी वो चला रहे हैं, मैं पैसे खर्चा, तो लगता था कहीं ना कहीं कि एज अ फीमेल मैं अपना कंट्रीब्यूशन लाइफ में नहीं कर पा रही हूँ। और आप में से वो लोग हाउस वाइफ होंगी, आपको लगता होगा कि फ्यूल के किसी खर्चे के लिए पैसे लेना, फ्यूल के किसी के लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं सेकंड थॉट आता है दिमाग में कि क्यों लेना है, इन पे बोझ खर्चा बढ़ाना है, ऐसा है, लग सकता है। लेकिन उनका सपोर्ट है, वो लोग आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब से मैंने सोशल मीडिया सीखा और मैंने चीजें की, मैंने पेशेंस रखा, एंड पैरेलली ही वाज वेरी सपोर्टिव इन एवरी टाइम, और हमेशा रहते हैं कुछ भी काम मैं करूं,
बट कहीं ना कहीं डाउट सभी को रहता है ना कि कैसे कर रहे हो या नहीं होगा तो। पर उनको डाउट नहीं था, उनने बोला ठीक है तुमको करना है तुम करो, तुम कर लोगी, ऐसा करके बोला था। तो मैंने किया, बट जब रिजल्ट नहीं आ रहा था उस समय भी लाइक ही वाज नॉट किलिंग मी कि तुमने किया पैसे वेस्ट किया, ऐसा नॉट नॉट लाइक दैट कि ठीक है आएगा करो करो, ऐसा करके ऑलवेज सपोर्टिव। और आपके बहुत सारे लोगों के हस्बैंड ऐसे होंगे, बट आप अपने आप को भी प्रूव करना पड़ता है। एंड जब से सोशल मीडिया सीखा है, आई हैव लाइक अथॉरिटी इन माई बिजनेस, लाइक मी एंड माई हस्बैंड इक्वल पार्टनरशिप, नॉट लाइक दैट कि सारा बिजनेस वही खड़ा कर रहे हैं या वही सब कुछ है। me is very important part of business, right? तो अगर आप कुछ ऐसा करती हैं कि आप कंट्रीब्यूशन करती हैं बहुत सारा 50% से एंड अबव आपके बिजनेस में, तो फिर आपका वैल्यू होता है एंड यू आर वेरी इम्पावर्ड। और आपके जो टीममेट्स होते हैं वो भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ उन्हें जानते हैं कि मैम और सर के बिजनेस में मैम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ऑफ मैम बिजनेस इज हियर एंड एवरीथिंग। तो एज अ वुमेन आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है और हर जगह प्रूव करना पड़ता है। एवरी टाइम आपको नया चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी प्रूव किया। सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे कोचेस के लिए, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था ये सब काम करता है, क्योंकि उनने कभी नहीं किया था। तो सिंपल सी बात है, किसी को नहीं बिलीव होता। तो वैसा ही था मैम, प्रूव करना है और फिर आप ऑलरेडी एम्पावर्ड फील करते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं और आप खुद की पहचान बना पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अभी ऐसा हो गया है कि मेरे बिजनेस का सारी ब्रांडिंग मेरी नाम से होती है, एवरीथिंग इज मेरे नाम से। एंड वो तो मैं बोल रही थी नाम बदल लेते हैं, बोले नहीं फिटनेस कोच कुसुम इज गुड, मैंने कहा नहीं चेंज कर लेते हैं, कपल का नाम रख लेते हैं। एंड यू वाज लाइक नहीं यू आर द ब्रांड, मैंने कहा ओके You are the face of the brand, right? यस यू आर द फेस ऑफ द ब्रांड, मैंने कहा चलेगा इट्स ओके। तो Wow. लाइक दैट मैम। मतलब आपसे कई बार बात कर रहे हैं, आप पर ये मुझे आज खुद पहली बार पता चला है, दैट यू बीन वेरी सपोर्टिव, हस्बैंड बीन सपोर्टिव, बट बिजनेस सिर्फ एक से नहीं चल रहा था, दोनों ने मिलके किया, दोनों ने काम डिवाइड कर लिया होगा, या इवन अगर कोई अकेला भी कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ही कर रहे हैं पूरा, बट दे आर स्टिल एबल टू मैनेज, एंड दैट्स अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर द पीपल। एंड एनीवन हैज अ क्वेश्चन हियर, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन स्टिकर में या फिर कमेंट सेक्शन में। एंड कुसुम, कुछ आखिरी कुछ 3 टिप्स या पता ना हैक्स जो लोग शुरुआत कर रहे हैं कि ये करो, ये नॉन नेगोशिएबल है, कहते हैं ना, मतलब सुबह उठ के ब्रश करना तो करना ही है, नहाना है तो नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है तो करना ही है। व्हाट आर दो 3 थिंग्स? 3 थिंग्स इज दैट, फर्स्ट इज दैट कि आप रोज सोशल मीडिया पे आओ, दूसरों को देखने नहीं, खुद को दिखाने। राइट। नहीं आप तो मैम बहुत लोग हैं, मिलियंस पीपल आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक तो कहीं मुझे गलत मत लेना। पहला स्टेप आप लीजिए, रोज आओ एंड पोस्ट समथिंग, योर फेस, आपका फोटो खींचो अच्छा सा पोज देके एंड डू समथिंग, कुछ तो करो पहले। यस, स्टोरी पर डालो कि मेरा वर्कआउट डन, एंड प्लीज स्टॉप शेयरिंग फेक अपरेस का फोटो कंटिन्यूअसली रोज रोज। अब पीपल तो आर फिटनेस कोच ने भी बोल दिया, अब तो बंद करो। हाँ, थोड़ा सा कुछ अलग डालो जो नॉर्मल जनता करती है। ओके, फर्स्ट थिंग इज सो, आपके जैसे आप सुबह उठ के जैसे अपन अपना काम में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वैसे सोशल मीडिया पर भी आना है, बिकॉज ये दुकान है और दुकान पर शटर नहीं खोलोगे तो कैसे कोई आएगा। I have shared this example every time, right? शटर ओपन वाला। Amazing, great. तो पहले चीज आपको शटर खोलना है सोशल मीडिया का। ओके, ग्रेट। यस, एंड सेकंड थिंग इज दैट मैम कि जो पहला तो खुल गया शटर, सेकंड थिंग स्टार्ट लाइक इंगेजिंग। जैसे आपने शटर खोल दिया तो आप कुछ तो करते हो ना। दुकान, अगर आप दुकान खोलते हो, हमेशा दुकान के एग्जाम्पल से आगे बढ़ना है कि जब दुकान खुल जाती है या तो फ्रेंड्स को बताते हो, अरे पता है आपको मैंने पार्लर की दुकान, मैंने उधर वो स्टोर खोला है, सबको बता देते हो ना कि मैंने दुकान खोला है, पड़ोसियों को, भाई बहनों को, सबको बता देते हो। तो वहां पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत करो। मैं नहीं कह रही उनको वेट लॉस के लिए डीएम करो, बातचीत करो, हाय हेलो व्हाट यू डू, उनसे जान पहचान नहीं बढ़ाओ। कह रहे हो, नहीं करो ही मत ये काम कि डीएम करो बेटा। ये करना ही नहीं। यस, डायरेक्ट उनको बातचीत करो कि आप कहाँ से हो, मैं इंदौर से हूँ, ऐसा नॉर्मल रोज 1-2 लोगों से बातचीत करो, बस इतना ही। एंड थर्ड इज फाइंड अ कोच। नेहा मैम है ना, नेहा मैम के साथ कनेक्ट हो, कोच होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ 3 ही टिप मैं दूंगी, रोज आओ, बातचीत करो लोगों से, और कोच के साथ आगे बढ़ के चीजों को बेहतर करो, क्योंकि इनसे काम नहीं चलेगा, अकेले काम नहीं चलेगा। अकेले हम प्लान नहीं कर पाते, अकेले हम ये नहीं नहीं कर पता कि करना क्या है। बचपन से ब्रश इसलिए करें क्योंकि बता दिया गया था, मम्मा ने बोला था कि करना है, नहीं तो मार यस, पड़ेगी।
हाँ Okay, wow, that was really amazing, Kusum. And so many people have been taking lot of inspiration from you, and we took like it's not even 1 hour, but लग रहा है बहुत कुछ आज आपसे जान लिया, बहुत थैंक कुछ. यू। Okay, and thank you so much. One more thing, if you can just add one last thing. I don't think आपको ज़्यादा वक्त ले रही हूँ मैं. Is if somebody wants to achieve a goal, what things to be kept in mind? हाँ, इस ये तो जनरल क्वेश्चन है कि कोई भी गोल अचीव करना है तो मतलब क्या प्लान करना चाहिए, ये आपने पूछा, राइट? प्लान क्या सोच के रखना चाहिए? कई लोग बोलते हैं कि मुझे वर्ल्ड टीम करना है, कैसे पता नहीं, वो कुछ दिन बाद गोल भी भूल जाते हैं क्योंकि वो हार मान जाते हैं. यस, तो पहला पॉइंट यही है जो मैं 100% तो नहीं कर रही हूँ, बट जब भी करती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट आता है। राइट डाउन योर गोल्स, आप लिख लो उन्हें और रोज रोज उनको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, पहला स्टेप। जब दिमाग में जो चीज रहती है वैसे हमारे एक्शन हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में स्टोरी डालना, आपका गोल है कि मुझे रोज स्टोरी कैसे डालना, अपने एग्जाम्पल लेते हैं काम का, तो आपको हर रोज टू डू लिस्ट में पहला पॉइंट लिखना है, स्टोरी डालना है। एक दिन नहीं डालोगे, 2 दिन नहीं डालोगे, तीसरे दिन से डालोगे और आपका गोल पूरा होने लग जाएगा। मेरा भी गोल था ये। मैं इंगेजमेंट नहीं कर पाती थी, मैं लोगों से रोज इंगेज नहीं कर पाती थी। लाइक ऐसा होता था मंथ में 10-15 दिन ही हो पाता, 10-15 दिन नहीं हो पाता था। मैं रोज लोगों के पास जाके हाय हेलो नहीं बोल पाती थी, छूट जाता था ये वाला पॉइंट। स्टोरी डाल के वापस आ जाती थी, लोगों को देखने लग जाती थी, मेरा टाइम वेस्ट होने लग जाता था। मैंने लिस्ट में लिखना पहले नंबर पे स्टार्ट कर दिया। इंगेज विद 20 पीपल या 10 पीपल या 5 पीपल। देखो मैं डीएम नहीं बोल रही हूँ, मैं इंगेज बोल रही हूँ, है ना, आप गलत मत समझ लेना। तो मैं अभी जाके टाइम निकाल के करती हूँ मैं। और ऐसा होता है, मैंने 20 लिखा है, 5 से ही करती हूँ, तो लेकिन रोज करती हूँ, ये जरूरी है। हाँ, तो जब भी कोई गोल करते हैं तो उसको अपनी टू डू लिस्ट में रोज लिखिए पहले नंबर पे, आपको जो भी अचीव करना है। और जब उसकी आदत लग जाए तो दूसरे को वहां शिफ्ट कर लीजिए। ये मेरा खुद का फॉर्मूला बनाया मैंने, अभी 6 महीने पहले से कर रही हूँ मैं इसको। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बट नॉट एक्सरसाइज। बट एज अ फिटनेस कोच ये बहुत जरूरी है। हाँ, डाइट से मुझे मेंटेन करना आता है, मैं मोटी नहीं हो सकती, लेकिन बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब ऐसा नहीं, हफ्ते में 3 दिन तो कर ही लेती थी, बट रोज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या करा, उसको पहले नंबर पे शिफ्ट किया, तो मेरी आदत बन गई, अभी मैं रोज कर रही हूँ। और फिर सेकंड थिंग मैंने देखा कि मैं बुक नहीं पढ़ पा रही थी रोज ना, सेल्फ हेल्प बुक जैसा कि हम सब पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़नी चाहिए, तो उसको पहले नंबर पे शिफ्ट किया। और ऐसे ही आप इंस्टाग्राम में स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, उसको कर सकते हैं शिफ्ट। ऐसा ऐसा अपनी टू डू लिस्ट को रोटेट करते रहिए, रोटेट। Wow. Wow, that is like a, brain opener for everyone. And thank you so much, Kusum. जाने के पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं मुझसे, लोगों से, जो आपके मन में है? यस, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, लाइकिंग मी। एंड जैसा कि मैंने देखा है कि जब भी कोई बस एक ही चीज लास्ट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बोलने में, किसी के 20वें चैप्टर से अपना पहला चैप्टर कंपैरिजन मत करना। लाइक नेहा मैम भी, मुझे आपको नहीं पता कि कितना आपको अभी मैंने बताया कि 2 साल तो नेहा मैम से कनेक्टेड हो गई, उससे 6 महीने पहले से भी कर रही हूँ। मुझे 2.5 साल से इंस्टाग्राम चला रही हूँ, है ना। तो अब मेरा जो जर्नी है, मेरा जो है, उससे अपना पहला दिन इंस्टाग्राम अकाउंट बना के कंपेयर मत करना, क्योंकि इस ऐसा करने से आपको मोटिवेशन नहीं डिमोटिवेशन आएगा। होगा। यस यस, हाँ, सीखना मेरे से, देखना मेरे को, बट कंपैरिजन वैसा मत करना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेहा मैम से सीख के मेरे को कंपैरिजन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपका ऐसा कैसे हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा। बट मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। बट ऐसा होता है क्योंकि मैंने टाइम दिया, नेहा मैम पे विश्वास किया। हर जगह विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोसेस पे विश्वास नहीं करेंगे, जर्नी पे विश्वास नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। अभी 4 किलो वजन कम करके, हाँ, अचानक से क्लाइंट बोलने लग जाए मेरा 4 किलो हुआ है, 4 किलो हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? 3 महीने लगेंगे आपको, है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते? 6 महीने लगेंगे आपको 20 किलो कम करने में या 17 किलो वॉट एवर कम करने में। तो ऐसे ही यहाँ भी है, हर जगह जर्नी पे विश्वास करना पड़ता है। कंपेरिजन जितनी जल्दी आप कम कर दो अच्छा है। मैं भी इसकी शिकार हो गई थी अभी बीच में। आई वॉज लाइक स्टार्टिंग कंपेरिजन, लाइक बहुत सारे लोगों से कंपेरिजन करने लगी थी, अपने ही बिजनेस के थे कि इनका इतना अच्छा क्यों है। बट फिर मैं मुझको समझ में आया कि वो कितने सालों से हैं, कैसे कर रहे हैं,
उनके पेरेंट्स भी बिजनेस में थे, लाइक मेनी थिंग्स मैंने स्टार्ट की चीजें। सबका अलग अलग तो फैक्टर है। हाँ, तो किसी न किसी के पास कुछ कुछ होता है। स्टॉप कंपैरिजन, कम जितनी जल्दी कर दोगे और अपने आप को 1% भी रोज इम्प्रूव करोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत शांति रहती है, बहुत अच्छा लगता है और बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है अगर कंपैरिजन मोड से आप बाहर आ जाते हैं। और सीखो जरूर दूसरों से, पोस्ट के आइडियाज लो। मैं अभी भी मैम किसी का एक कोई तो थे, आई डोंट नो, कोई दूसरे ही कंपनी के थे एंड उन्होंने एक रील बनाई थी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उसका आइडिया लिखा और मैंने भी उस पर रील बनाई। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से सीख नहीं सकते, मैं तो कोई भी दिख जाए मुझे, मैं तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो यस, इम्प्लीमेंटेशन करना और कंपैरिजन मत करना, दैट्स द लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच मैम इनवाइटिंग मी। और लर्निंग एटीट्यूड रखना, राइट, वो हमेशा। यस, लर्निंग एटीट्यूड रखना है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच कुसुम फॉर कमिंग हियर। मे बी शायद आप एक और कुछ माइलस्टोन करो और हम फिर से आपको बुला लें, थोड़ा और इंस्पिरेशन आपसे ले लें। एंड लुकिंग Yes, फॉरवर्ड, I will definitely do. stay connected. Thank you so much, everyone is saying thank you, and you can just share love to everyone. Okay. Thank you so much, everyone. Okay, thank you, take care, bye bye.